توجہ کے ساتھ ذہن کے ساتھ حاضر دبا کر سنیں گے. امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حسینی ہونے کا ثبوت دے سکیں گے. محترم دوستو، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جو انقلاب ہے وہ واقعہ کربلا ہے. اگر آج واقعہ کربلا نہ ہوتا، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر نبی کی دین کا محافظ ہے، نبی کی شریعت کا محافظ ہے، تو صرف اور صرف کربلا ہے. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کو کسی کے ساتھ ملایا نہ کرو، ہم کو کسی کے ساتھ منسوب نہ کیا کرو. ہم اپنی مثال آپ ہیں. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. نہ اللہ جیسے نہ تمہارے جیسے. اگر اللہ جیسے کہو گے تو مشرک، آپ نے جیسے کہو گے تو کافر. معصوم فرماتے ہیں، اولنا محمد وآخرنا محمد، ہم پہلے بھی محمد، ہم آخری بھی محمد. وکلنا محمد واوسطنا محمد، کل کے کل محمد، سب کے سب محمد. صلوات پڑھیں محمد والا. آلے نبی اولاد علی پہ بابا سے بلند صلوات. محمد آلے محمد. دعا پڑھیں ضرور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین وظہورت القائم صلوات کی بردی خلوت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المالک المحمود المالک الودود مصور کل مولود ومال کل مطلود. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. کوشش کریں ایک مل کی بابا سے بلند صلوات. دعا گو اللہ رب العزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر عزت دار کی عزت میں اضافہ کرے. جتنے میرے شیعہ اور نہایت قابل احترام اہل سنت بھائی حسین بادشاہ نواب کربلا کے چہلم میں حاضر ہوئے ہو، مالک آپ کی محنت، کوشش، کاوش، نیتیں سب پوری فرمائے. اس پرشوب سے دور میں کہ جب بکتے ہوئے قلم اور بکے ہوئے زمین حسینیت کے خلاف اپنی باطل قوتوں کی امداد کر رہے ہیں، دعا گو اللہ رب العزت کعبے کی چھت پہ اس کا ظہور فرمائے کہ جو پردہ غیبت میں کاروان حجت الہیہ کے میر کاروان کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا مطلق العنان اور مدبر الامور مولا اپنے چہرہ انور سے رخ حجابت ہٹائے، کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لہرا کر کائنات کے ہر کمینے کو گریبان سے جھنجھوڑ کے سمجھائے علی واجب ہوتا ہے. مالک السلام حسین کے بعد اگر آپ ذہن بتائے چھوٹی سی حسین کا ذکر ہو، مجھے پڑھنے میں دقت آ رہی ہے. یہ جگہ خالی ہے، مطلب کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے. مالک کا ذکر ہے، کوشش کریں اٹھائیں، مالک آپ کو سلامت رکھیں.
चले जाइए। एक बंदे ने आना था हमारे मालिक आपको इस नाजर से जो हुसैन के जिक्र में कोशिश करते भाई जान पहला जुमला पढ़ रहा हूँ और मेरा यकीन एतमाद बाहर है कि मेरी बात अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। पहला जुमला आपने तवज्जो फरमानी है, साथ मानो खुद ही देंगे। पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, मौजूद सफी हुसैन 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में जागना। फिर सुनना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में ज़ाते इलाही कम से कम 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे जिसे गौर और गरूर से देखे उसे हुसैन कहते हैं। मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। हुसैन की मां तुम्हारे उठे हुए हाथों को किसी का मेरा हैदरी मालिक सलामत रहे, मालिक हैदरी मालिक सलामत। ये नारे का जवाब दिया करो, जब बच्चे नारे लगाते हैं ना इसका जवाब दिया करो। कल को यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और ये बच्चे सिर्फ नारा नहीं लगाते, ये बच्चे सरगोते के मुसल्ली को बताते हैं कि जिस पे नमाज वाजिब नहीं उस पे अली वाजिब है। मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। अकीदे वाले बंदे को मेरा सलाम। मैंने कहा कम से कम 6 घंटे ज़ाते तौहीद आया मेरा मुर्शिद हुसैन जिसे गौर और गरूर से देखते, जिसे मेरी बात पे इतराज हो अलामा मजलिसी का मकसद जाहिर कर दिया। पहला जुमला आपने समाज इतना अच्छा फरमाया बादशाह जी। दूसरा जुमला पढ़ने की जसारत कर रहा हूं। अल्लाह का नबी 27 या 28 रजब को जमीन से अर्श से मुअल्ला तक जिसे मिलने जाए, अकीदे वाले बंदे से सिर्फ मेरी बात है, उसे जाते खुदा कहते हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को उसके नूर की तजल्ली जिसे करबला में मिलने आए उसे हुसैन कहते हैं। मालिक सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। हिजरी करबला के मैदान में एक मजलिस होती है, पढ़ लो बस आया 4 भाइयां पढ़िया नारे लगाएंगे। एक मजलिस होती है, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, सदात की जूती मेरे सर का ताज है। इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि ज़ाते तौहीद के नूर की तजल्ली जिसे मिलने है उसे हुसैन कहते हैं। 2 जुमलों पे आपने मेरा इत्मीनान बहाल किया है। अगला जुमला आपकी मोहब्बत पे तुम्हें दे रहा हूं। हुसैन किसे कहते हैं? जागना नहीं मालूम, जो अल्लाह की अदालत के सजा याफ्ता मुजरम को माफी देने वाले सलामत रखे, जो अल्लाह की अदालत के सजा याफ्ता मुजरम को माफी देने की ताकत रखता हो। कायनात की उस हस्ती को हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं जिसे अभी तक समझ नहीं आई। जितना मैंने पढ़ लिया, वक्त मेरे पास इतना ही है, इतना मैंने और पढ़ना है। तवज्जो मेरी ज़्यादा रखना। अल्लाह की अदालत के सजा याफ्ता मुजरम को माफी देने की ताकत रखता हो उसे हुसैन कहते हैं। कल को कोई बंदा अगर मेरे जुमले पे एतराज करे, उसे दावे की दलील में अभी देने लगा हूँ। हुसैन उस करीम का नाम है जो 3 शबान को इस दुनिया में आया, जो 10 मुहर्रम को इस दुनिया से गया। इतना सभी है बटूल का बेटा। 40 साल उसने आते हुए भी एक मुजरम को माफी अता फरमाई। हुसैन ने जाते हुए भी एक मुजरम को माफी अता फरमाई। हुसैन की बारगाह में पहला मुकदमा अर्श का पेश हुआ।
हुआ, हुसैन की बारगाह में आखिरी मुकदमा फर्श का पेश हुआ। हुसैन ने पहले दिन कुदरत को फरादा किए, हुसैन ने आखिरी दिन होर को अलैहिस्सलाम बनाया। लगते खाने के देश को पास वाला खाना नहीं छेड़ता। जो मौलवी कहता है हुसैन फर्श के रहने वाला था, बताओ मुझे हुसैन ने अर्श के मुजरिम को नजात क्यों दी है? जो कहते हो हुसैन अर्श के रहने वाला था, बताओ मुझे हुसैन ने फर्श के मुजरिम को नजात क्यों दी है? बादशाह जी ऐसा नजात दहिंदा है बतून का बेटा कि इसने 3 शबान को खुदरस को फल अदा करके 10 मुहर्रम को होर को अलैहिस्सलाम बना के कायनात को बताया है फर्श का बादशाह भी हुसैन है। अर्श मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। हुसैन के बारे में मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। और हाथ यहीं पे रखना, 4 जुमले सुनना। आले मोहम्मद की मोहब्बत अब्बे की विरासत से नहीं मिलती, माँ के खून की शराफत से मिलती है। हाथ यहीं पे रखना। शहीद उस्ताद अल्लामा नासिर अब्बास के 4 जुमले पढ़ता हूँ। कितना फरमाया करते थे, शजर जब हर्फ ज़द होते हैं तो गुच्चे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आ जाए फिर शजरे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकिया ऐन मुमकिन है, जुबानें चुप भी हो जाए चेहरे अली अली हुसैन की बात हो गई, सलाम पेश कर रहा है। अरश के बादशाह को हुसैन कहते हैं, वो तो नहीं कहते। फर्श के शहंशाह को भाई साउंड वाले, भाई साउंड वाले, मैं तेज हो रहा हूँ, तेरा साउंड स्लो हो रहा है। मालिक आपको सलामत रखे। इसकी इको कम करे, बेस को ज्यादा करे, आवाज को बढ़ा दे। मालिक सलामत रखे। सलवात पर मिल के पढ़े। ठीक है, मालिक सलामत रखे। तो जो फर्श का बादशाह भी हो, अरश का शहंशाह भी हो। अच्छा, हम पढ़ते हैं हुसैन के फजाइल। लोग हम पे इतराज करते हैं नाउज़ बिल्लाह कि ये हुसैन को रसूल से भी बढ़ा देते हैं। मौलाना उसे समझ नहीं, हुसैन के फजाइल खुद रसूल के फजाइल हैं। मेरी कौम मेरी तारीफ फरमाएगी इस बात पर। जिस तरह हुसैन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन के फजाइल खुद रसूल के फजाइल। इस बात पे आप मेरे साथ हैं। एक जुमला चलो तुम्हें तोहफा देने लगा हूं, जिसने तवज्जो फरमाई वो बंदा उड़ जाएगा, अरश की साइड करेगा। पढ़ो जुमला। रसूल रजी अल्लाह बनाता है, रसूल की बारगाह में आने वाले रजी अल्लाह बनते हैं। आया मेरा मुर्शिद हुसैन, खुदा की कसम है, बेटा दे दूं या जुमला न दूं, इतना बड़ा जुमला है। फिर सुनो, रसूल की बारगाह में, याद रखना हुसैन के फजाइल रसूल के फजाइल है, लेकिन रसूल की बारगाह में आने वाला रजी अल्लाह बनता है, हुसैन की बारगाह में आने वाला अलैहिस्सलाम बनता है। मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। इसलिए तो जब उस कुत्ते ने कहा था ना, उसने कहा हुसैन मेरी बैयत कर, 26 रजब वलीद का दरबार, तो हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करता, बल्कि खुदा की कसम मेरे मौला ने वो जुमला कहा, कलम नूर का हो रुखसार हूर का हो। जुमला लिखू हक अदा नहीं होता। हुसैन बादशाह ने फरमाया मुझ जैसा
کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا شاہ جی کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ جملہ پڑھنا بھی آسان، اسے سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ یعنی کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ حسین جیسا ہوگا، جو بیعت نہیں کرے گا۔ اور چلو داد نہ دینا، جملے کو سمجھنا۔ جب حسین نے چراغ جلایا تھا، پھر بجھایا تھا، پھر جلایا تھا، پھر بجھایا تھا، 3 دفعہ مولا نے چراغ جلایا اور بجھایا ہے۔ جب تیسری دفعہ حسین نے، میں نے کہا جو بیعت نہیں کرے گا وہ حسین جیسا ہوگا، حسین اسے اپنے جیسا کر لے گا۔ کیسے؟ جب حسین نے تیسری دفعہ چراغ جلایا تو حسین کے صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ چراغ سے پہلے ہمارا سایہ تھا۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے فضائل۔ چراغ سے پہلے ہمارا سایہ تھا، چراغ کے بعد حسین کے اصحاب کا سایہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ حسین نے فرمایا تھا جو بیعت نہیں کرے گا مجھ جیسا ہوگا۔ میں نے ہاتھ مار کے پوچھا مولا آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، سیدھا کہہ دیجیے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، کم از کم تمہارے طویل سوالوں کے جواب ایک جملے میں بند کر دینے لگو، ایک جملے میں۔ حسین نے کہا کیوں میں کہوں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ جو بندہ گھر سے حسین سننے آیا ہے بات اس سے، اچھا جی دعا فرمائیے آپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا مولا وہ کیوں؟ کہا تو جانتا نہیں آج یہ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں، حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ پہ محمد کا ہاتھ ہے۔ جملہ لینا، حسین فرماتے اگر آج میں نے اس کی بیعت کی، کل کو دنیا کہے گی حسن نے بھی کسی کی بیعت کی تھی، علی نے بھی کسی کی بیعت کی تھی۔ حسین نے کہا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی باری کا تو زمانہ جو ہلکے کے بعد بھی ہو تم توجہ فرمانا۔ میں نے کہا حسین میں تیری بارگاہ میں سب سے چھوٹا سا دل ہوں، ان کو سمجھاؤں کیسے؟ کہا تم نے میرے نامے کی حدیث نہیں سنی، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد۔ بندے نے آ کے تیرے معصوم امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا آپ سارے کے سارے محمد ہیں۔ مولا نے فرمایا سارے کے سارے محمد ہیں۔ اس نے کہا مولا توجہ، اگر آپ سارے کے سارے محمد ہیں، آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ خدا کی قسم تیرا پورا مجمع حق کے سماعت میں کھڑا ہو جائے، حق کا نہیں ہوتا جتنی کلیجے کی طاقت لگارو۔ امام فرماتا تجھے ایسے سمجھ نہیں آئے گی، جب قرآن لے کے آ، وہ قرآن لے کے آیا، معصوم کے ہاتھوں پہ قرآن آیا نہیں، بلکہ یوں کہتا ہوں بولتے ہوئے قرآن کے ہاتھوں پہ گنگا قرآن آیا، بولتے ہوئے قرآن کے ہاتھوں پہ گنگا قرآن آیا۔ معصوم نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے۔ مولا نے کہا پھر بتا، اس نے کہا قرآن ہے۔ مولا نے کہا پھر دے، اس نے کہا قرآن ہے۔ مولا کہتے ہیں اچھا یہ قرآن ہے، اگر یہ قرآن ہے یہ الحمد کیوں ہے، یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا پھیلاؤ تو صورتیں، سنتے تو قرآن۔ مولا فرماتے ہمیں پھیلاؤ قرآن، سنتے تو محمد۔ سلامت ہمیں پھیلاؤ تو آج جو حسین سننے آیا ہے، سمٹے تو بولو، سارے بولو، عبادت ہوتی ہے سارے بولو۔ اچھا اس نے کہا حسین بیعت کر، چیلم کا موضوع ہے، اس کے علاوہ کیا موضوع پڑھوں میں؟ اس نے کہا بیعت کر، ولی ہے۔ اب اونچی بات کرنے لگا ہوں دھیمی سی آواز میں۔ حسین نے کہا بیعت کروں؟ ہاں بیعت کر، ولی کا دربار 26 رجب پارشد میں۔
हुसैन ने फरमाया बैयत क्यों करूं, जागना नहीं बंद। उसने कहा बैयत इसलिए कर, यजीद कह रहे तख्त मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, तराज मेरे पास, शाही मेरे पास, बादशाही मेरे पास, तीर अंदाज मेरे पास, झूठी रवायतें गढ़ने वाले मेरे पास, झूठी हदीसें गढ़ने वाले मेरे पास। हुसैन से कहा मेरी बैयत कर। चौधरी साहब वलीद करवाता रहा, हुसैन देखता रहा, वलीद करवाता रहा, हुसैन देखता रहा। मुझे अली की इज्जत की कसम, एक बंदा मेरी बात को समझे, कब्र की लहर तक उसे सलाम करूंगा। वो गिनवाता रहा, हुसैन गिनता रहा। बादशाह जी वो गिनवाता रहा, हुसैन गिनता रहा। जब गिनवाते 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 वलीद थक गया ना, अब वो चुप हो गया। अब हुसैन बोला। हुसैन कहते वलीद तख्त भी उसके पास, हुकूमत भी उसके पास, तराज भी उसके पास, शाही भी उसके पास, बादशाही भी उसके पास, तीर अंदाज भी उसके पास, झूठी रवायतें गढ़ने वाले भी उसके पास, झूठी हदीसें गढ़ने वाले भी उसके पास। मेरा उसे पैगाम देना, इतना कुछ होने के बाद शर्म तो तुझे फिर नहीं आई, मांग तो तू भी हुसैन से रहा है। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। इतना कुछ होने के बाद मालिक सलामत रखे हुसैन, इतना कुछ होने के बाद शर्म तो तुझे फिर भी नहीं आई। सलाम करे इतना कुछ होने के बाद तो जो है शर्म तो उसने फिर भी नहीं आई, मांग तो वो भी हुसैन से रहा है। उसने कहा हुसैन यजीद कर रहे हैं, या बैयत कर या मदीना छोड़। आप पे मेरा दिल लग गया, वरना फजाइल मैंने चौथा पढ़ लिया था, जितना मेरे हिस्से की नौकरी थी वो मैंने पढ़ ली। अब अगले जुमले आपकी मोहब्बत में दे रहा हूं तुम्हें, रसूल फरमाएंगे आप। उसने कहा हुसैन यजीद कहता है अगर बैयत दी, इधर मेरी तरफ देखना, अगर बैयत नहीं करनी तो मदीना छोड़। हुसैन फरमाते उसे मेरा पैगाम देना, यार कोई तो बंदा समझेगा। हुसैन कहता उसे मेरा पैगाम देना। हुसैन कह रहा है मैं मदीना छोड़ दूंगा, लेकिन यजीद इतना याद रखना, जिसे हुसैन छोड़ेगा वो कयामत तक मुनव्वरा कहलाएगा। अली वालों को अगला जुमला सुनाने की जरूरत है। जिसे छोड़ के जाऊंगा वो कयामत तक मुनव्वरा कहलाएगा, जिसे जाके बसाऊंगा सलामत रहे, सलामत रहे, वो मुअल्ला बन जाएगा, वो मुअल्ला बन जाएगा। अभी तुझे हुसैन समझ में नहीं आया, मुअल्ला है ही तो, या अल्लाह का मुअल्ला है या हुसैन का मुअल्ला है। हुसैन ने छोड़ दिया मदीना, बस 4 या 5 मिनट और गुजारे, उसके बाद जिक्र है। हुसैन ने छोड़ दिया मदीना, भैया सुन रहे हो, हुसैन ने मदीना छोड़ा। बादशाह जी हुसैन आ गया काबे में, यजीद फिर किसी न किसी सूरत में हुसैन के सामने आ गया। उसने कहा या काबा छोड़ या बैयत कर। 9 जिलहज या 8 जिलहज, बतूल के बेटे ने हज को उम्रे में बदला। हुसैन अल्लाह के घर से निकला। अब इतनी देर हो गई है मुझे पढ़ते हुए, तुम्हें कोई 20-25 मिनट तो हो गए होंगे। एक सवाल करता हूं तुम्हें, अपने अकीदे को सामने रख के जवाब देना है। हुसैन ने बादशाह जी हज को उम्रे में बदला, सारे जानते हो। अच्छा जो पीछे बंदे हज पढ़ रहे थे उनका हज कबूल है? आप नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा, दोनों कबूल है। क्यों कबूल नहीं? खाना काबा भी वही, हजरे अस्वद भी वही, नारे वही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लाका वल मुल्क, वही पढ़े थे ना। हजरे अस्वद को चूम भी रहे थे ना, सफा और मरवा में दौड़ भी रहे था, सारे के बाल भी बनवाए हुए थे ना। फिर हज क्यों कोई नहीं कबूल? सारे शिया सुन्नी हर मकतबे फिक्र का बंदा कहेगा कि उनका हज नहीं कबूल, इसका मतलब उनका हज नहीं कबूल। अब मैं मौलवी की गर्दन पे हाथ रख के बनवा लूंगा। मौलवी तो इतना जानता है, जिस इबादत से ये निकल जाए इबादत इबादत नहीं रहती। मालिक सलामत, मालिक सलामत, जहां से ये निकल जाए वो इबादत इबादत नहीं होती।
पास तुम्हारे करीब आ गया, छुट्टी दो मुझे, जाने लगाओ। जिस इबादत से ये निकल जाए, इबादत इबादत नहीं रहती। अगला जुमला है थोड़ा मुश्किल, हजम किसी किसी को होता है, यानी जिस इबादत से हुसैन निकल जाए वो इबादत इबादत नहीं रहती, तो जिस इबादत से अली निकल जाए। उसने कहा हुसैन काबा छोड़ या बैयत कर। तवज्जो शादी मेरी तरफ, उसी बनाया तो मैं आ गया, उसी गला दी उसको काबा छोड़ या मेरी बैयत कर। अब जुमला खुदा की कसम इतना बड़ा है, आपकी मोहब्बत में देने लगा। सदात एक दिन का सैयद दो बाप से अफजल होता है, सैयदादी एक दिन की उम्र से अफजल होती है। बादशाह जी आपकी जूते मेरे सर का ताज है, क्योंकि वो जाकर जाकर नहीं होता जो सैयदों की इज्जत नहीं करता, औलाद रसूल की जो इज्जत है। जुमला आपकी मोहब्बत में देने लगा। उसने कहा हुसैन या काबा छोड़ या बैयत कर। हुसैन फरमाते काबा में छोड़ दूंगा, लेकिन उसे इतना जाके बता देना जिसे आज हुसैन छोड़ के जा रहा है, कयामत तक जो इसकी ज़बारी को आएगा एक हज का सवाब मिलेगा। बोलो यार, बोलो यार। जिसे जाके बसाऊंगा, चलो छोटी रवायत पढ़ देता हूं, सरकार फरमाते कम से कम रवायत पढ़ देता हूं। जो इसकी ज़बारी को आएगा एक हज का सवाब, जो करबला की ज़ियारत को जाएगा 70 हज्जों का सवाब, 70 हज्जों का सवाब। करबला की ज़बारी को जो जाएगा उससे 70 हज्जों का सवाब। बात मेरी हो, मोज समेत मुझे पकड़ के बारगाह से बाहर फेंक दो, बात मेरी नहीं, बात है तेरे मासूम इमाम की। बंदे ने आकर तेरे मासूम इमाम से पूछा, उसने कहा मौला करबला की ज़बारी का सवाब क्या है? मौला फरमाते करबला के ज़बार के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। उसने कहा मौला और सवाब क्या है? अकल वालों के लिए जुमला है। मौला फरमाते अगले गुनाह माफ हो जाते हैं। उसने कहा मौला और सवाब क्या है? मौला कहते हैं ज़बार इतना पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के सदफ से बाहर आया हो। मौला ने 70 फजीलतें बयान की। बंदा पूछता रहा, तेरा छठा इमाम बताता रहा। 70 फजीलतें पूछने के बाद और मौला बताने के बाद इमाम जाफर साहब खामोश हो गए। उसने कहा है मौला तेरे दादे हुसैन की ज़र्री का सवाब खत्म हो गया। मौला फरमाते मैंने अगला सवाब पढ़ा, मुझे डर है लोग अल्लाह का हज न छोड़ दे, लोग अल्लाह का हज न छोड़ दे। अगर कोई बंदा मेरे जुमले पे इतराज करे, 500 रुपया मुझसे ले ले, पास इकबाल की कब्र है, उससे कहा इकबाल की कब्र पे टक्कर मार के मर जा। उसने क्यों कहा था बयान शुक्र शहादत की अगर तफसील हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ है शफी। ये ननकाना साहब आपके करीब है, करीब है, जो इधर क्या वो तो बोलो यार। बाबा गुरु नानक का नाम आपके ज़हनों में है। गुरु नानक के एक मरीद ने कहा, उसने कहा बाबा कोई शिया है? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं शिया। उसने कहा बाबा जी मैंने देखा है, आया मेरा जी। उसने कहा बाबा मैं देखता हूँ तू बहाने ढूंढता है हुसैन की बातें करने के, बहाने ढूंढता है, बात कहीं की होती है। चलो 3 या 4 मिनट मज़ाहिर के बाद इसमें कोशिश करूंगा तुम्हें हुसैन समझा दूं। उसने कहा बाबा तू शिया है, मैंने देखा है तू बहाने ढूंढता है हुसैन की बातें करने के। मुस्कुराया करो, मौला के जिक्र में दाद ना भी दे सको ना तो मुस्कुराया करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी इबादत है। इबादत पता कितनी बड़ी है? बादशाह जी बेटा वो आपका दुआ फरमाइए। तेरा मशहूर में फरमाता है जो बंदा है मोमन
ہمارے ذکر میں بیٹھے، بول نہ بھی سکے، گفتگو نہ بھی کر سکے، نعرہ نہ بھی لگا سکے، چھوٹی بات بڑی بات دھیمی آواز میں، مولا فرماتے ہمارا نام سن کے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئے۔ تیرا مشہور امام فرماتا ہے اس کی یہ عبادت 50 سال کی نماز تہجد سے افضل ہے۔ مالک سلامت رکھے، مالک سلامت، چہروں پہ خوشی لے کے اس نے کہا بابا تو شیعہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں شیعہ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے تو بہانے ڈھونڈتا ہے حسین کی باتیں کرنے کے لیے۔ اب بابا بولا، بابا کہتے تو کون؟ اس نے کہا میں تیرا مرید۔ اس نے کہا تو شیعہ ہے؟ بابا اس سے کہہ رہے تو شیعہ ہے؟ اس نے کہا نا بابا مجھے، میں تو نہیں شیعہ، میں تو تیرا چیلا ہوں۔ بابا کہتا ہے میں تو جانتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں تو بھی حسین کو مانتا ہے۔ میں نے کہا تھا 3 منٹ میں تمہیں حسین سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا نہیں بابا میں تو تجھے مانتا ہوں، میں تو حسین کو نہیں مانتا، تجھے میں نے دیکھا ہے، بات کہیں کی ہوتی ہے تو لا کے حسین سے ختم کرتا ہے، بات کہیں کی ہوتی ہے تو لا کے حسین پہ ختم کرتا ہے۔ حسین کے ذکر میں بخشش مانگا کرو، یہ نہ دیکھا کرو نماز نہ کبھی چھوڑنا، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے یہ نہ سوچا کرو کہ میں بڑا گناہ گار ہوں میں تو بخشا نہیں جاؤں گا، نہ، یہ گناہ کبیرہ ہے حسین کی مجلس میں۔ آپ جانتے ہیں تیرے معصوم امام نے فرمایا 1000 قطاریں ہوں گی، 1000 قطاریں، 1000 قطاریں ہوں گی، دیکھنا تیرا مرشد کتنا سبھی ہے، 1000 قطاریں ہوں گی قیامت والے دن جن کی بخشش ہونی ہوگی۔ بات میری نہیں آ گئی، بات تیرے معصوم امام کی۔ مولا فرماتے ایک قطار ہم 13 مل کے بخشوائیں گے، 999 اکیلا حسین بخشائے گا۔ 999 اتنا بڑا صدیہ حسین کا ذکر سے مانے گا۔ حسین محسن انسانیت، حسین انسانیت کا محسن ہے۔ بات یاد ہے؟ اس نے کہا بابا میں تو تجھے مانتا ہوں۔ اچھا تو مجھے مانتا ہے؟ کتنا مانتا ہے؟ اس نے کہا بابا سر قلم کر لے، توجہ فضائل آخری جملہ، بابا سر قلم کر لے۔ بابا کہتا ہے سر نہیں چاہیے، یہ بتا مانتا ہے؟ اس نے کہا بابا تجھے مانتا ہوں، حسین کو نہیں مانتا۔ اچھا بابا کہتا ہے مجھے کتنا مانتا ہے؟ کہتا ہے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ بابا کہتا ہے اگر اچھا ایک طرف میری بات ہو ایک طرف حسین کی بات ہو، یار میں نے تو بخل نہیں کیا، کس کی مانے گا؟ کہتا ہے بابا تیری مانوں گا، حسین کو تو میں مانتا نہیں۔ بابا کہتا ہے اچھا میری بات مانے گا، مجھے بادشاہ جی علی کی عزت کی قسم ایک سے بڑا جملہ میرے کوزہ عرفان میں نہیں ہے، وہ بندہ اڑ جائے گا عرش کی سیر کرے گا جسے ایک سطر میں حسین سمجھ میں آ گیا۔ بابا کہتا ہے کتنی بات مانتا ہے؟ اس نے کہا بابا سر قلم کر لے۔ بابا کہتا ہے ایک طرف میری بات ہو ایک طرف حسین کی بات ہو، کس کی بات کو مانے گا؟ کہتا بابا تیری مانوں گا۔ بابا کہتا ہے اچھا میری بات مانے گا، حکم دو۔ کہتے تھے بابا کہتا ہے سنبھل کے بیٹھنا، کہتے ہیں سنبھل کے بیٹھو۔ بابا کہتے ہیں مجھ گرو نانک کے کہنے پہ گھر جا، اپنی گھر جا کے اپنی بہن سے لگا کر، اپنی بہن سے شادی کر، اپنی بہن سے نکاح کر۔ اور بندے نے دیکھا بندہ تڑپ کے کہتا بابا ٹھیک ہے تو میرا گرو ہے، لیکن حکم تو وہ دے جس کی ضمیر ملامت نہ کرے، حکم تو وہ دے جس کی ضمیر ملامت نہ کرے۔ گرو نانک تڑپ کے کہتا ہے بچے اسی ضمیر کی طاقت کو دو حسین۔ سلام علیہ حسین کی بات کو سلامت رکھیں۔ مالک آپ کو آپ نے کہا جی تھوڑا سا فضائل اور پڑھے، سب کا میں بات ہے چلو 3 یا 4 منٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے حسین محسن انسانیت، حسین محسن انسانیت ہے۔ اوے جتنے بھی نبی ہیں نا، جتنے بھی امام ہیں، یہ کرم کے مالک ہیں، فضل کا مالک صرف حسین ہے۔
हाँ, अच्छा, अगर नहीं मेरी बात मान ली, अगर सारे फजल के मालिक हैं तो राहत को बेटे रसूल देता। मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत भाई। राहत को बेटे, आज बंदे इतराज करते थे राहत का वाकया गलत है, राहत का वाकया गलत है, बंदों पे पर्चे हो जाते हैं इस बात पे। अच्छा चलो, एक राहत को छोड़ो, मौलवी जी इस मजमे से वो हाथ खड़े होने लगे हैं जिन्हें हुसैन ने बेटा अता किया है। तुम्हें राहत तकलीफ देता है ना, ये तो कई राहत यहाँ पे बैठे हुए हैं जिसे हुसैन ने, अगर सारे फजल के मालिक होते राहत को बेटे रसूल देता। वो रसूल की बारगाह में आया, आया जी बादशाह जी, मालिक आपको सलाम करेंगे। उसने आके कहा या रसूल अल्लाह बेटे चाहिए। सरकार ने कहा लोहे महफूज में नहीं। रोता हुआ राहत चौसा बाहर निकला, रोता हुआ जा रहा था। अब यहाँ पे बंदे पढ़ते हैं या जाकर पढ़ते हैं कि हसन और हुसैन गली में खेले हुए। माफ कर, वो तेरे मेरे बच्चे नहीं, जो बच्चों वाला खेल थे। हुसैन राहत का इंतजार कर रहा था। हुसैन ने देखा राहत रोता हुआ बाहर निकला। हुसैन ने कहा क्यों रोता है? कहता बादशाह नवाब करबला तेरे नाना की बारगाह में आया था, बेटे मांगे हैं नहीं मिले। अब जब यहां से नहीं मिले तो कहां से जाके लूं? हुसैन फरमाते तूने करम से मांगे थे, आप फजल भी जाते। जिसका अकीदा है वो मेरे साथ, करम थक गया फजल देखना। मैंने कहा था हुसैन के फजाइल रसूल के फजाइल, रसूल जानते थे कि इसको बेटे देगा हुसैन, रसूल भी दे सकते थे। अच्छा, रसूल भी राहत को बेटे दे सकते थे। तो मुझे ये बताओ, जो बंदे कहते थे नहीं रसूल राहत को बेटे नहीं दे सकते थे, रसूल फुदरस को भी शफा दे सकते थे। लेकिन ये फजाइल है हुसैन के लिए। हुसैन ने बाजू से पकड़ा। अब मंजर देखना, सरकार की बारगाह में लेके आए, कहा नाना हमारी बारगाह से आज तक कोई रोता हुआ तो नहीं गया, तेरी बारगाह से आज तक कोई रोता हुआ नहीं गया। नाना ये बेटे लेने आया था, इसने बेटे नहीं दिए। रसूल मुस्कुरा कर फरमाते हुसैन बेटा लोहे महफूज में नहीं। कहता है नाना अगर लोहे महफूज में होते हमारे पास आता क्यों? अगर लोहे महफूज में होते हमारे पास आता क्यों? कहता है नाना इजाजत दे, आज हुसैन लोहे महफूज की तकरीरें बदल देता है। बेटा इजाजत है, तवज्जो मेरी जानब, मेरी आवाज तुम तक आएगी। रसूल ने कहा हुसैन बेटे दे। अब देखना मेरी तरफ, यूं करके हुसैन ने राहत की तरफ देखा, राहत ने हुसैन की तरफ देखा, राहत की तरफ हुसैन देख के कहता है राहत एक, राहत पार। जब गाना राहत सा, इतना अकीदा था राहत का, राहत भाग के गया, कदमों में हाथ रख के कहते हैं फजल वाले बस कर, जुमला लेना। हुसैन कहते हैं अगर मुझसे मांगना होता है तो झोलियां भरी करके आया करो। राहत अगर आज तुम बस न कहता, कयामत वाले दिन एक तरफ आदम की औलाद होती है।
हुसैन फरमाते हैं झोलियां बड़ी करके आया। अगर आज तू बस न कहता, कयामत वाले दिन एक तरफ तेरी औलाद होगी, एक तरफ आदम की औलाद होगी। 64 मुल्कों ने मिलकर अकेले हुसैन को मारा। सैयद बैठे, मुझे माफ कर दो। 64 मुल्कों से, खबरदार कोई इंतजाम में मशगूल ना हो। बस जिस मेहनत के लिए तुम आए हो, यार मैं 1000 दफा पढ़ देता हूँ। 64 मुल्कों ने मिलके एक हुसैन को मारा, और मारा पता कैसे है? चेहरा मनाने आए हो ना गरीब का, उसका चेहरा मनाने हो जिसकी लाश पे उसकी बहन को मातम नहीं करने दिया गया, उसका चेहरा मनाने हो जो 9 टुकड़ों में तकसीम हो गया। अज़ादारों, पता कितना मारा है? मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, मुझे सैयदों से डर लग रहा है। इतना मारा है, तेरा मासूम इमाम फरमाता है, मेरे पापा को तीरों से मारा गया, मेरे पापा को नेज़ों से मारा गया, मेरे पापा को बच्चियों से मारा गया, मेरे पापा को, अगला जुमला बड़ा मुश्किल है। परदुशा जी, तेरा मासूम इमाम फरमाता है, मेरे पापा को लाठियों से मारा गया। जो हुसैनी बैठे हो, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, बंदे ने पूछा, मौला मैदान जंग में तीर होते हैं, तलवारें होती हैं, बच्चियां होती हैं, नेज़े होते हैं, मौला लाठियों से? तेरा मासूम इमाम फरमाता है 10 मुहर्रम 61 हिजरी को 48 में नामशर तेरे दिल में कब्र है। सैयद कह रहे जुमे का दिन है, अभी जुमे वाले दिन जब सब जाके देखना, जो इमामत करवाते हैं उनके हाथ में असा होते हैं। जुमे की नमाज से फारग होके उन कुत्तों ने अकेले हुसैन को मारा। यार इससे आगे मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं, तेरे मौला को लाठियों से मारा गया। और पता कितना मारा गया बादशाह जी? किसी ने गरीब की कबाल उठ ली, कत्ल हुसैन पे बात रुक जाती, हम बर्दाश्त कर लेते। किसी ने गरीब की कबाल उठ ली, किसी ने गरीब की अबाल उठ ली, किसी ने गरीब का अमामा लूट लिया। जुमला पढ़ने लगा, हाय जरूर करना सैयदो। एक कुत्ते ने हुसैन की कमीज में हाथ डाला, गरीब रो के कहता है, तुम मेरी अबा ले गए, तुम मेरी कबा ले गए, तुम मेरा इमामा लोगे, लईनो मेरे जिस्म पे ये कुर्ता छोड़ दो, कल मेरी लाश पे मेरी बहन ने आना है। हाय मेरा ये बहन और भाई का खुदा की कसम, मेरे दिल में भी कब्र हुसैन, जो हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, सीना प्यारा न करना, अपना चेहरा प्यारा न करना। समझो मेरी जान, कहा मेरे जिस्म पे ये कुर्ता छोड़ दो, कल मेरी लाश पे मेरी बहन ने आना है। यार ये जो बहन और भाई का प्यार है ना, ये बड़ा अजीब होता है। शादी पढ़ू, खुदा की कसम तुम्हारे घर के वाकयात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2-2 घंटे कब्रिस्तानों में मैयतें पड़ी रहती हैं। लोग कहते हैं यार नाराज ना होना, थोड़ा इंतजार कर लो, अभी तदफीन नहीं होगी, मरने वाले की बहन आ रही है, मरने वाले की बहन आ रही है। शादी ये मेरे और तेरे घर के वाकयात है, हो सकता है किसी का चेहरा उसे हुसैन से ज्यादा कर रहा हो। मैं पहले बात कर लेता हूँ गरीब तेरी गुर्बत का। अज़ादारों, जब 2 घंटे के बाद बहन आती है ना, तुमने अपनी आंखों से देखा है, बहन रो रो के कहती है, भाई माफ कर देना, मैं लेट हो गई थी, भाई रास्ते में ट्रैफिक बंद थी। कोई कहती ये मसला बन गया, कोई कहती ये मसला बन गया। तुम जुड़ गए हो बात पे तो जुमला करो। एक मनाती करने वाला मनाती करके कहता है यार मैयत से अपना चेहरा फेर लो, मरने वाले की बहन आ गई है, आप रख मेरे सर पे गुरार, वो तो मेरी और तेरी बहनें हैं, हमारी बहनें कुर्बान ज़ैनब तेरे बुलबुल पे, हमारी जानें कुर्बान हुसैन तेरी हुर्मत पे। अज़ादारों, जब 11 मुहर्रम को हुसैन की बहन हुसैन से
में तकसीम था गरीब का लाशा, हाय मेरे अल्लाह। भाई के लाशे पे खड़े हो गए, ज़ैनब रो के कहती है भाई शाम का बगैरत माहौल भी दे, हुसैन मेरी फौज भी दे। हुसैन वापस उस वक्त आऊंगे जब यजीद जैसा कमीना भी कहेगा हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। वो हुसैन बचाने के लिए यार आसान बचा है हुसैन। चलो जुमला पढ़ता हूँ तुम्हारे बातों के लिए, सिर्फ 2 मिनट का मसला है। 6 घंटे लगे और हुसैन के 6 घंटे बादशाह जी हुसैन ने तौहीद बचाई, नबूवत बचाई, इमामत बचाई, दीन बचाया, तेरी बेटियों की इज्जत बचाई, नाना की अजान बचाई। शाह जी जो सैयद बैठा हो मुझे माफ कर देना, 6 घंटों में हुसैन ने पूरा इस्लाम बचाया है। अज़ादारों 6 घंटों में हुसैन ने दीन बचाया है। अज़ादारों हुसैन के 6 घंटे लगे इस्लाम बचाने में, ज़ैनब के 2 साल लगे हुसैन बचाने में। मातम तो शीश का करते हैं हम, वो ततहीर की पलियां आखिरी जुमला, वो जिनके कद से उनके सगे भाई वाकफ न थे, वो जिनका चेहरा कुरान के अलावा किसी न, जो सैयद बैठा हो उससे माफ कर देना, आप सैयद है, किसी सैयद का दिल दुखी हो मुझे माफ कर देना। यार बताओ मुझे, चलो सांस ले लो, एक जुमला था बेचारा इंसान का शेरा, हमें बता दो हम मातम न करें तो क्या करें, क्या करें। यार अबू सुफियान का नजस पोता शराब पी रहा था, दरबार में वो खड़ी थी जिनकी माँ का जनाजा राह पे उठा था। हजारों 18 बीबियां थी, एक रस्सी थी, 18 बीबियां थी। शादी मुझे डर लगा, माते मुझे उन जवानों से डर लगा। 18 बीबियां थी, एक रस्सी थी, 18 बीबियां थी, एक रस्सी थी। सबसे आगे फिजा थी, फिजा के पीछे ज़ैनब थी, ज़ैनब के पीछे कलसूम थी, कलसूम के पीछे रुकैया थी। जुमला शादी तुम्हें समझाने लगा हो। हजारों 18वीं बीबी थी, हुसैन के गले का तवीज़ था, 4 साल की सबीना थी। मातम शीश का हम करते हैं, सारी बीबियों के हाथ रस्सियों में बंधे हुए थे। हुसैन की 4 साल की बेटी के गले में रस्सी थी। अज़ादारों 9 या 7 घंटे की रिवायत है, इससे बड़ा मसाइल शादी मुझे नहीं आता। 9 घंटे ये कुत्ता शराब पीता रहा। अज़ादारों तबहीर की बलिया दरबार में खड़ी रही। 7 या 9 घंटे के बाद शफीर रूम उठा, शफीर रूम में उठ कहा और यजीद जुल्म की कोई हद होती है। यजीद कहता है क्या हुआ, कहते तू 9 या 7 घंटे से शराब पी रहा है, तू शतरंज खेला है। जो हुसैन का बात भी अब वादा करो कि आज के बाद मैं कभी शराब को देखूंगा नहीं। खुदा की कसम इस शराब की वजह से हुसैन की बेटी 9 घंटे खड़ी रही है। ये कमीना कहता है, कहते तुझे क्या हुआ, उसने कहा ये कैदी कौन है, ये कमीना कहता है ये बागी है। कहता है बागी किसे कहते हैं, आवाज आई बागी उन्हें कहते हैं जो हाथ में वक्त की बहन न करे। शादी जो हल्के के बाद भी बैठो एक दफा हाथ उठाना, मैं तुम्हारे लिए जुमला पढ़ने लगाओ। इसने कहा कमीने बैत बड़े पे वाजिब होती है, बच्चों पे वाजिब नहीं होती। शफीर रूम कहता है तू 9 घंटे से शराब पी रहा है, मैंने 9 घंटे में देखा है वो जो इस रस्सी के आखिर में एक बच्ची है, जुमला सुनना, उसने 7 दफा गिरने की कोशिश की है, उसकी रस्सी ने उसे गिरने नहीं दिया, उसकी रस्सी ने उसे गिरने नहीं दिया। अज़ादारों ये कमीना कहता है सुबह मैंने इस बच्ची से बात करनी है। अज़ादारों इस कमीने ने आवाज दी, बच्ची तू कौन है जिसने बिस्तर पे मालूम करना है, देखना मेरी तरफ। आवाज नहीं आई। इसने फिर कहा बच्ची तू कौन है, बादशाह की आवाज भी आई। इसने तीसरी दफा कहा बच्ची तू कौन है, आवाज नहीं आई। जब तीसरी दफा आवाज नहीं आई, इसने शिवर से कहा शिवर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, इसको बना मर जाता मैं बड़ी जवानी में। इस कुत्ते ने लोहे का ताजियाना उठाया, उसका ताजियाना उठाना था, सकीना के जिस्म में लसाया लसाया, सज्जाद की जंजीरें हुई। सज्जाद कहते कमीने आया कर, तुम मेरी बहन को बुलाता
मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बाबाज़े बुलंद सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बरादरान मिलते इस्लाम, अल्लामा तकीर काज़मी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम अपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों से अपील करता हूँ कि वो फर्शे अज़ा में आए और मौलाना साहब को सुन के मिल जाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, फिर भी सलवात पढ़े। बाबा से बुलंद सलावत। मोहतरम दोस्तों, गुलशने रिसालत के ये वो सदाबहार फूल जिनकी खुशबू अल्लाह के नबी को इतनी पसंद थी कि वो इस खुशबू को अपनी जात से जुदा होने पर इमादा ना होते थे। यही कहा करते थे, मेरी जिंदगी के दो ही तो फूल हैं, एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है। इमाम हुसैन की मोहब्बत हम लोगों की आन है, शान है, जान है, पहचान है। इमाम हुसैन की मोहब्बत दुकानदारी नहीं बल्कि ईमानदारी है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हूँ हुसैन से। हुसैन मुझसे और मैं हूँ हुसैन से। सवाल पढ़े जरा। ये फिक्र किस जबान मुबारका से निकला? अल्लाह के नबी की जबान से निकला। अल्लाह के नबी कुर्बान परवर नहीं। बड़ी तवज्जो के साथ अगर मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनेंगे, उम्मीद रखता हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए रामा साहब के लिए पानी पिएंगे। जैसे पानी पिएंगे मिंबर पे आएंगे तो 2 मिनट के लिए हदीस बयान करूंगा। अगर हदीस को तवज्जो के साथ सुनेंगे, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग हुसैनी होने का सबूत दे सकेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये फिक्र किस जबान मुबारका से निकला? अल्लाह की नबी से जबान मुबारका से निकला। अल्लाह के नबी कुर्बान परवर नहीं, अल्लाह के नबी हक परवर है। अल्लाह के नबी खानदान परस्त नहीं, अल्लाह के नबी हक परस्त है। अल्लाह के नबी किसी की भी तारीफ करते हैं, करीबी समझकर नहीं करते बल्कि हक समझकर करते हैं। अपने भाई अली के बारे में फरमाया, भाई समझकर नहीं फरमाया, हक समझकर फरमाया। अपने बेटे के मतलब कहा, बेटे समझकर नहीं कहा, हक समझकर कहा। अपनी बेटी का मतलब कहा, बेटी समझकर नहीं कहा, हक समझकर कहा। क्या कहा? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मोहतरम दोस्तों, इस हदीस के 2 फिक्रे। पहला फिक्रा, हुसैन है मुझसे, यह फिक्रा समझना आसान। दूसरा फिक्रा, मैं हूँ हुसैन से, यह फिक्रा समझना मुश्किल। वो कैसे? बेटा बाप से होता है। दूसरा फिक्रा समझना मुश्किल, मैं हूँ हुसैन से, क्योंकि बाप बेटे से नहीं होता। अगर कोई शख्स जाती कमाल की बदौलत मुतारिफ करवाया जाता है तो ये कहा जाता है ये शख्स फाज़िल है, ये हुआ उसका जाती कमाल। ये शख्स आलम है, ये हुआ उसका जाती कमाल। या दुनिया के लिहाज से किसी बड़े होने पर फायज है, ये हुआ उसका जाती कमाल। अगर वो दुनियावी ओहदा नहीं रखता, दीनी ओहदा नहीं रखता, अपने बाप की तरफ से मुतारिफ करवाया जाएगा तो ये कहा जाएगा ये फलां साहबे कमाल का बेटा है। इससे पता चला मालूम हुआ जो शख्स जाती कमाल की बदौलत मुतारिफ करवाया जाता है उसका हसन नस्ब है, और जो किसी साहबे कमाल की तरफ मंसूब करवाया जाता है वो अपने नस्ब का मालिक है। ये भी जरूरी नहीं जिसका नस्ब अच्छा हो उसका हसब अच्छा हो, या जिसका हसब अलग हो उसका नस्ब अलग हो। हजरत आदम का बेटा नस्ब है अच्छा, है पैगंबर का बेटा, लेकिन हसब नहीं अच्छा। वो कैसे? अपने बाप की शरीयत का दुश्मन, अपने भाई हबीब का कातिल, हजरत नूह का बेटा, नस्ब अच्छा लेकिन हसब नहीं अच्छा।
अच्छा, नसब अच्छा, पैगंबर का बेटा। हसन नहीं अच्छा था, ना अमल था, ना करदार था, ना करदार था। अल्लाह के नबी मुतारिफ करवा रहे हैं हुसैन को। अगर हुसैन का नसब देखना है, हुसैन मुझसे है। अगर हुसैन का हसब देखना है, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। हुसैन का हसब अच्छा, हुसैन हस्ती, हुसैन का नसब अच्छा, हुसैन नस्बी। हुसैन वो अजीम शख्सियत है, हदायत याफ्ता रहनुमाओं के लिए पाशे इत्तिफार है, खुदा पर इत्मीनान करने वालों के लिए रोशन चिराग है, हर मोमिन मोमिना के लिए सरमाया नसीहत है, जिनके बाद मलूके काबा है, जिनकी माँ फातिमा जन्नते खतून है, जबराइल और मीकाईल गवाही देने वाले हैं, असरार की गोश में परवरिश पाने वाले हैं, नूर के चश्मा से सराब होने वाले हैं, वाजिए हक से गुज़ा हासिल करने वाले हैं। सरदार बड़े मोहम्मद सिर्फ एक हदीस के बाद मौलाना साहब को बयान दूंगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस अब्दुल अजीज दहलवी साहब वो 3 हदीसें तरतीब के साथ लिखते हैं। पहली हदीस कुरान को देखना इबादत, दूसरी हदीस काबे को देखना इबादत, तीसरी हदीस अली को देखना इबादत। बड़ा मुख्तसर करूंगा। कुरान को देखना क्यों इबादत है? कुरान किताबुल्लाह है। काबे को देखना असली इबादत, काबा बैतुल्लाह है। अली को देखना असली इबादत, अली वजहुल्लाह है। किसी एक शख्स ने बहाना तलाश किया, अल्लाह के नबी कुरान हमेशा रहेगा, इसकी इबादत करेंगे, काबा भी हमेशा रहेगा, इसकी इबादत करेंगे। जब अली दुनिया से चले जाएंगे तो फिर किसकी इबादत करेंगे? फिर अल्लाह के नबी ने कहा अली का जिक्र करना इबादत। फिर उस शख्स ने एक बहाना तलाश किया, एक बहाना ढूंढा। अल्लाह के नबी गवर्नमेंट अगर अली के जिक्र पर पाबंदी लगा दे तो फिर किसकी इबादत करेंगे? फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अली से मोहब्बत रखना इबादत। सैयद फिदा हुसैन शाह एक जुमला देने लगा है, देखो देखने का तल्लुक आंखों से, ज़बान का तल्लुक जिक्र से, मोहब्बत का दिल तल्लुक दिल से। लाओ ऐसा ईमान, तलाश करो, आंखों में आ जाए तब भी इबादत, अगर ज़बान पे आ जाए तब भी इबादत, अगर दिल में आ जाए तो तब भी इबादत। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, उनके नक्शे कदम से असूल बनते हैं। उनके घर वालों की मंजिल का क्या पूछते हो, जिनके बच्चों की सवारी रसूल बनते हैं। उस शख्स का मुकद्दर अजीब है जिसको अली वली की गुलामी नसीब है। अगर खुदा से मिलना है तो गारो सुमर मसाए बीबी का ढूंढ, जिसका घर से खुदा के सहन के बिल्कुल करीब है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपके सामने जनाब मौलाना तकीर काज़मी साहब और गुजरावाला आपके सामने फजाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और मुसाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आप सब लोग अली अली हुसैनी हुसैनी होने का सबूत दे सकेंगे। जनाब अल्लामा तकीर काज़मी साहब, बाबा से बुलंद सलावत। ये जो 23 सफर की मजलिस है, इल्म की मजलिस है, ये सालाना प्रोग्राम है 23 सफर वाले दिन। हर साल चेला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जाएगा। तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों से अपील है कि ये 23 सफर जो है हमारी परमानेंट तारीख है, जो सैयद फरियाद हुसैन शाह, सैयद सीरत अली शाह, सैयद मीरत अली शाह, सैयद फिदा हुसैन शाह ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। अल्लाह ताला के हमसे दुआ है कि आप सब लोगों को और बानियान को तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
السلام علیکم یا اہل بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الشاکرین، الحمد للہ الذی توحد بالعز والبقاء وتفرد بالعظمة والكبرياء، ناصر المؤمنین قادر المبتدئین مقضی المنافقین فی الدنیا ویوم الدین، خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه، لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد